I was very young. I didn't really understand the movie when I first watched it. It wasn't until a couple of rewatches I had got a new meaning every time growing up. And it was always one of the movies जो टीवी पे लगती थी because it's a timeless comedy. Like, फाइट सीक्वेंस वो उसका एक अलग ही स्टाइल है. फाइट सीक्वेंस जो था दोनों में उसमें The एक्शन fight sequence between Salman and Shakti Kapoor, and which हाँ. eventually I think if you guys have seen मुझसे शादी करोगी, तो एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, उसमें अक्षय कुमार और सलमान खान वो almost similar चीज करते हैं. It was more like हाँ, they don't fight but they fight वाली बात है. It was amazing वो अंदाज अपना अपना में. स्टूडियो का नाम था ऐसा फोटो शूट हुआ करता था मतलब, और वो जो बंदा था वो सबको चुना लगाया था सालों साल स्पेशली. वावा प्रोडक्शंस शुरू हो कर Wow, दो. देखो I मतलब think कच्चे खिलाड़ी हो तुम लोग. हाँ यही कह रहे हैं, कच्चे खिलाड़ी हो अभी. देखो हेलो 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 जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेके हेलो जी सनम हम आ गए आज. we know there are some movies which are good, which are great, and some which cross these limits and register themselves as cult movies. And definitely Andaz Apna Apna is one of that. So welcome everyone to a very special episode of Critics Roundtable on Cubicle Cinema podcast. Today we are taking a nostalgic joyride back to one of the most iconic comedies of all time, Andaz Apna Apna. And why today? The reason being, in couple of weeks on 18th April, I think 2025, it will be re-released in India. And this is one of the most anticipated re-releases. That's the insider news we are giving because we know what's going on behind the scene. And even on Rekobi Insta handle or the app, you will see a lot of engaging content around it because we ourselves are a big fan of Andaz Apna Apna. So that's the reason we had this idea that let's do some special podcast on this particular theme. Okay. So I'll begin. I'll quickly throw back to you guys, and obviously we'll also participate because it's like more of a discussion. So first thing first, what are your first memories and reactions of watching it? And when did you realize that it's not a normal movie? Okay, so and you can talk in Hindi, English, whatever, because it's more for Indian audience. So whatever, whichever language you're comfortable with. Go ahead, anyone, Anisha or Himanshu. Go ahead. मैं बोलूं हाँ बिल्कुल बोलिए. मेरा पहला रिएक्शन ये था जब मैंने देखी थी तो भाई बहुत कल्ट क्लासिक मूवी है. एंड भाई उस टाइम पे भाई उस फिल्म का अलग ही मतलब. कब देखी थी, कौन से साल में देखी थी? भाई लगभग सन 2007-8 में देखी थी मैंने. अच्छा. उस टाइम पे देखी थी मैंने. तो उस समय बच्चा हुआ करता था. तो उस टाइम मैंने देखी थी. भाई फिल्म है. अब ऐसी फिल्म फर्स्ट टाइम में तुम्हें पसंद आ गई थी पहली बार में? फर्स्ट टाइम. अच्छा. मैं बचपन से फिल्म जी यूट्यूब चैनल भी है, फिल्म रिव्यूज करता हूँ वहाँ पे. नहीं वो अच्छी बात है. तो फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि बिकॉज जब मेरी पहली मेमोरी थी जब ये रिलीज हुई थी 94 में. सो आई वाज इन ए स्कूल हॉस्टल क्लास 5 आई थिंक. ठीक है. तो हमें वीकली एक मूवी दिखाई जाती थी एंड वेंसडे टू वेंसडे अंदाज अपना अपना दिखाई गई. एंड ऑब्वियसली बच्चे थे, कॉमेडी था, पसंद आया. उस समय की मेमोरी मुझे याद आ रही है. मुझे लगा समहाउ थोड़ी ओल्ड टाइप सेट हुई है, कंटेम्प्रेरी नहीं थी इन द सेंस सॉन्ग्स एंड ऑल पुराने जमाने के थे. Hello Hello, the cinema, because Majroo Sultanpuri and Naushad, I think Naushad was music director. तो ये सारी सेटिंग्स थोड़ी पुराने जमाने की थी बट एक्टर्स नहीं थे. सलमान खान एंड ऑब्वियसली आमिर खान दैट टाइम दे वर लाइक फ्रेश एक्टर्स. तो उसमें हम लोग को लग रहा था मूवी तो बहुत अच्छी है बट थोड़ा ओल्ड टाइप सेट किया गया है. बट द फीलिंग कि ये नॉर्मल न्यू मूवी नहीं है ये आया कॉलेज के समय व्हेन वी स्टार्टेड वाचिंग की मतलब बार बार उसके सीन्स देख रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं, लाइक हाँ दिस इज समथिंग जो स्टक कर गई. ठीक है. तो वो सब वैसा लग रहा. हाँ. For me, I was very young when I first saw it. Because ये मेरे पैदा होने से पहले मूवी रिलीज हुई है. So I was very young. I didn't really understand
the movie when I first watched it. It wasn't until a couple of rewatches I had got a new meaning every time growing up. And it was always one of the movies जो टीवी पे लगती थी because it's a timeless comedy. Like इसमें there's no outside knowledge you need to know. It's very situational. So you will always understand कि क्या हो रहा है. You will always know, and then the music and everything will help you and support you in understanding the whole parody or the comedy. So for me, it was like the first what time I watched it, I was like, "What are they doing? What is happening?" But I was also very young, so I think each time I watched it, I had some new perspective, and I learned new things, and it was like really cool unpacking it. I think even now, if I watched it tomorrow, I would have a different meaning or something like that. Cool. Himanshu, what about you? I think I first saw that before that मतलब 2005 समथिंग, क्योंकि जब उस टाइम में ना प्रियदर्शनी का एरा चल रहा था, पी हेरा फेरी और हेरा फेरी दैट टाइम। तो उस टाइम में एक टीवी में आता था कॉमेडी क्लासिक्स वगैरह करके, मतलब स्टार गोल्ड के स्पेशली रहता था टाइम्स में 4 शाम के मतलब 5 बजे उस टाइम में अंदाज अपना ये प्रीमियर हुआ था मूवी के टाइम उस टाइम में टीवी में। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत मजा आया। फर्स्ट टाइम तो इतना मजा आया, स्पेशली परेश रावल और आमिर खान का जो वो रहता है ना साइकिल वाला सीन, वो स्पेशली वो जब पैसे देने के वक्त आता है वो परेश रावल को वो सिक्के में देते, वो दैट वाज फनी। और लास्ट में स्पेशली क्लाइमैक्स जो क्राइम मास्टर गोगो, वो लिटरली वो पसंद आया। एंड फन फैक्ट है कि वो जो मूवी देखते हैं ना तो मतलब वो जो है ना शक्ति कपूर का तो करियर ही चेंज हो गया उस टाइम में। पहले वो बैडीज रहता था, अब कॉमेडी बैडीज बन गए थे पूरे उस टाइम में। Truly true. And the double role, that I mean, Paresh Rawal Saab is just amazing. I can't believe it, and I think even the leads, Amir Khan, Salman Khan, their comedic timing was absolutely amazing. वो आजकल पसंद नहीं आएगा कोई उस तरह से करेगा. It was very raw, you can say. It was very raw cartoonish. Yeah. In the sense कि वो they were very new to the industry. मतलब they had done some movies, but Salman Khan was totally different that time. It was like he was not the Salman Khan of today. वो तो बहुत अलग ही था. वो बहुत ही अलग था उस समय. तो मतलब हाँ, तुम कुछ I कह feel रहे like the थे. characters were like quirky and iconic. They were not like vulgar as well. Like the Yes. comedy was also not rooted in any sort of social media term or anything like that. If you see comedies nowadays, they're very like based on memes and based on social media. That one is very situational. It's not based on anything that you like. You don't need to know some outside knowledge or some meme knowledge or anything like that, which is why those were More like a Gen Z, all-time Gen Z, classics. more like a Gen Z type Yeah. jokes. हाँ शकील बोलिए, आप कुछ But बोल रहे थे. मैं कह रहा था जो परेश रावल सर हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई, वो आज भी वो चीज परफॉर्म करने वाले हैं। हेरा फेरी उनकी आ ही रही है अभी रिसेंट टाइम में, आप देख लो कॉमेडी फिल्म अच्छी उतनी आ नहीं रही है। करंट टाइमलाइन में हाउसफुल की फ्रेंचाइजी आप देख लो, हाउसफुल 1 अच्छी थी, हाउसफुल 2 उतनी अच्छी नहीं थी। तो यही है ना कि अब कॉमेडी उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पाए जैसे कि पोर्ट्रे करना चाहिए था उनको। नहीं, इवन राजकुमार संतोषी की बात करें ना, he tried that with अजब प्रेम की गजब कहानी, right? Other it like same director, but then मतलब it was like looking lot of overacting from Ranveer, correct? मतलब आप अभी देखोगे मतलब you are like उसमें भी थोड़ी situational comedy करने की कोशिश की and right, तो मतलब it's a good movie, but then it's not मतलब वो good और cult में तो बहुत gap है, मतलब it's like huge gap between. It's organized chaos, which is what I like about it. It's absolutely hilarious and it's chaotic and everything, but like you can understand it. That's how chaotic it is. पूरा bird's eye view picture मिल जाता है. You can kind of predict कि क्या होने वाला है, but फिर भी इधर-उधर चीजें हो रही हैं. Then what अभी is कॉमेडी मूवीज तो बहुत है, क्रिंज तो फील होता ही, बट साथ ही साथ है ना काइंड ऑफ लाइक कि फ्रेंचाइजेस को भी रोन करता है, बट उनके पास ना स्क्रिप्ट के आइडियाज है ना, वो दूसरे मूवीज को लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो हाउसफुल 5 जो है वो शिप के अंदर है, ऐसा है वगैरह। सो काइंड ऑफ थिंग लाइक कि वो एक इंस्पायर कर रहे हैं
मर्डर मिस्ट्री दिखा के उसमें कॉमेडी कैसे डाल सकते हैं? कोई चांस ही नहीं उसका। पब्लिक हंसेगी नहीं, फिर उसमें वो क्रिएट कर जाएगा, फिर वो बट मजा नहीं आएगा। राइटर तो फरार समझी है, तो डर तो लगना चाहिए ना। दे आर मार्केटिंग लाइक बिग हाउसफुल मूवीज, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, बड़ी अब तक की सबसे महंगी कॉमेडी मूवी बनाई जा रही है। कॉमेडी की बात करें तो ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो है, उससे अच्छी कॉमेडी कौन कर रहा है करंट टाइम में, ये बताइए। वो तो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और हॉरर की बात मैं नहीं कर रहा, हॉरर तो वो उतना अच्छा है कि ना, कॉमेडी तो अच्छी कर रहे हैं ना भाई, और फिल्म भी उनकी अच्छी है, कॉमेडी तो वो अच्छी कर रहे हैं अभी। नहीं नहीं, सही सही बात है, वो एक्चुअली टू द पॉइंट वाली चीज है। लाइक अगर अंदाज अपना अपना का आप देखो तो आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ इस बंदे ने बहुत अच्छी, इसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी, मतलब ओवरऑल पैकेज ही, मतलब हर कैरेक्टर अपने आप में, चाहे छोटा रोल हो चाहे बड़ा, लाइक गोविंदा का ही देख लो ना, गोविंदा वाज अ वेरी स्मॉल अपीयरेंस इन दैट, बट वो मतलब उसकी कॉमिक टाइमिंग उस उतने से ही, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा वो उस रोल में, चाहे जूही चावला ही रहे, जब द बिगनिंग सीन, मतलब उसको just हमेशा about वो to say, Jui was amazing as well. वही ना, लाइक वो बस इतना That स्मॉल was the रोल ही, first. गेस्ट अपीयरेंस है, बट लाइक दैट वाज वो फर्स्ट सीन ही इतना वो सेट कर देता है टोन, एंड इट लिक्स ओके, दिस इज कूल। आमिर खान जो ही पेयरिंग वाज अमेजिंग टू स्टार्ट विद, तो वो चीज रहेगा। बट व्हाट डू यू थिंक, ये मूवी उस समय क्यों नहीं चली, व्हाई इट डिडंट वर्क दैट टाइम, क्योंकि इट वाज अ फ्लॉप। सर देखो, मेन बता रहा हूँ मैं, उस समय जो ऑडियंस थी ना, वो बहुत ही एक्शन देखना बहुत पसंद करती थी, वो मासी ऑडियंस। 94 में हम आपके हैं कौन आई, 95 में DDLJ आई, मतलब जैसे अगर चलने वाली बात कर रहे हैं, हाँ, रोमांटिक जॉनरा भी तो बहुत ऑन पीक था वो। फैमिली ओरिएंटेड थी, आई कैन एग्री कि 93 से 95 थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा थी, बट हाँ कॉमेडी का शायद नैक नहीं आया हो। कॉमेडी का चलन उस समय नहीं था, कॉमेडी का ट्रेंड नहीं था, एक्शंस और I रोमांटिक would की say, चलन। yeah, the audience at that time was not very used to ऐसे जो parody comedy होता है. It must have felt too over the top for them at that point. So it was very ahead of its time in that way. And also back in the 90s and even early 2000s, there was a very big trend of having a clear hero, one clear hero in every film. In this one, it was no clear hero. It was following two men, so Amir Khan, Salman Khan, and then a lot of other characters. And it's just a bunch of nonsense basically that's been put together. So the audience must have been confused. Ki, who am I rooting for? What am I doing? उस So जमाने में अगर आप क्राउड की बात करें या कॉमेडी की बात करें, आई थिंक हेरा फेरी से वो ट्रेंड आया था। मेरे हेरा फेरी भी देखोगे ना, काइंड ऑफ सिमिलर थिंग, लॉट ऑफ chaos, दो एक्टर, प्रियदर्शन का तो भाई अलग ही टोन है उनका तो। दैट इज नहीं, उस समय क्राउड ने एक्सेप्ट करना भी, ऑडियंस ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर हेरा फेरी वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑडियंस लाइक अपीलिंग, फिर बाद में बहुत वो ट्रेंड चालू रहा, एंड देन इट बिकेम टू मच ऑफ दोस कॉमेडी। तो I would also say partly due to promotions at that time. I think promotions or PR of a film was not very big at that time. It was kind of like, this is our film, watch it if you want to, this is what you're going to get. I think like when it would run, I know some other big films in that time. It would have clashed with big जो action films उस time के होते हैं, तो it didn't have a good life at the box office. It kind of gained traction and it kind of took off more after it was released on TV. But for me, again, it was mainly word of mouth. Like, as soon as they started figuring out that this girl likes Bollywood, that this girl would only eat when she has Bollywood in front of her, they're like, let's put some comedy, let's give her some variety. आजकल एज अ बच्चा मैं खाना नहीं खाती थी अगर कोई बॉलीवुड मूवी मेरे स्क्रीन पे नहीं होता। टॉकिंग अबाउट, मतलब वापस आते हैं लाइन पे, अनविशिड की फेवरेट डायलॉग या सीन या कुछ कैरेक्टर स्पेसिफिक जो याद है कि हाँ दिस इज मेरा फेवरेट, कोई ऐसा बताओ। अगर बहुत बारी प्राइम मास्टर गोगो मोगैम्बो का भतीजा। The first time you said dialogue, that's the first time that came into my head. Iconic, honestly, Shakti Kapoor Saab, iconic. So, Okay, what about the costume which he had? Was that also really good? घाघरा, Yes, आपका yes. घाघरा, And then the muche which he had. pure Bollywood comedy, yeah.
And Literally. since you mentioned He Shakti was Kapoor, a na, lovably stupid villain, and I love that. the Like fight sequence. you wanted to hate him, but then also wanted to give them like a big hug. Like, सीक्वेंस फाइट सीक्वेंस वो उसका एक अलग ही स्टाइल है फाइट सीक्वेंस जो था दोनों के बीच में The एक्शन fight करने वाला sequence between Salman and Shakti Kapoor, and which eventually, I think, if you guys have seen मुझसे शादी करोगी, तो एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, उसमें अक्षय कुमार एंड सलमान खान वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज करते हैं. इट वाज मोर लाइक, हाँ, दे डोंट फाइट बट दे फाइट वाली बात है. इट वाज अमेजिंग वो अंदाज अपना अपना में. बट हाँ, it's just मतलब random and chaotic. I love it. cool. Any other, Himanshu, तुम्हारा कोई फेवरेट सीन या डायलॉग या कैरेक्टर? फेवरेट सीन तो क्लाइमैक्स का ही ऑब्वियसली, क्योंकि जब वो आमिर खान और सलमान खान जो काइन मास्टर गोगो से कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो काइन मास्टर गोगो बंदूक जब दिखाते हैं ना सलमान खान और आमिर खान को, तो एक डायलॉग याद आता था, आप पुरुष हो, महापुरुष, आप महान पुरुष है. आप वो पुरुष ही दैट नहीं वाज काइंड ऑफ फुल. जब ये वॉच करो तो वो भी हंसी आ रही थी. और स्टार्टिंग में जो जूही चावला के साथ था, और फिर वन में जो ड्रीमिंग कर रहे हैं ना वो सीक्वेंस, उसके बाद वो जो उसका आमिर खान का फादर आ जाता है वगैरह, वो सब सपने वगैरह जो बताता है ना, वो भी एक कॉमेडिकली था. मतलब स्टार्टिंग का मोनोलॉग ओवरऑल. The thing about it comedy ना, कि ऐसा नहीं था कि एक बार देख चुके हो and you know कि what will happen, तो you will not laugh, you will laugh again. मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आपको पता है कि हाँ ये यही बोलेगा, but still you will गले लग जा, like गोविंदा वाली बात, गोविंदा चिपक के, right? Like such a small thing, right? But वो like it will give you instant kind of वो थी कि हाँ, it's a more like comic relief. तो बहुत I think you amazing. realize something every time you watch it as well. Like that our chipakke will be different the first time you see it, then it'll be different the second time you see it, then the third time you'll be like, ये कर क्या रहा है? अरे वो तो डेविड धवन सर का स्टाइल है, वो उनका स्टाइल ऐसे ही होता है. डेविड धवन सर का स्टाइल तो उनकी फिल्म भी अपनी बेटे को भी कराते थे, वरुण धवन को, वो सब चीज. अभी तो आ रही है फिल्म वरुण धवन की, एक है जवानी तो इश्क होना है, उसमें भी ऐसे कुछ होगा, पर अब गोविंदा पे सूट करता था, अब किसी पे सूट नहीं करेगा. गोविंदा पे नहीं करता. But it's also because Govinda did it over the top without being too cringy. Like he had that line of comedy or making someone uncomfortable, but he put it in the comedy, and he always he did it perfectly. I think the casting was great. Yep, I totally agree. अगर करंट जेन में, आई डोंट नो, हम लोग, मैं तो ये पिक्चराइज नहीं कर सकता हूँ, कभी कभी ऐसा हो रहा है, सीक्वल की बात हो रही है, बट सीक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर करंट जनरेशन में अगर किसी को अमर प्रेम बन के देखना है, किसको देखना चाहते हो अगर अमर प्रेम का रोल में? मतलब अगर पूरे कैरेक्टर्स का ही बोल सकते हैं ना, तो लाइक आई थिंक 6 मेन कैरेक्टर्स वे देयर. सो अभी दैट मूवी वाज लॉन्च इन 94, तो अभी अगर लॉन्च होता तो व्हाट डू यू गाइस फील कि मतलब वो जो भी कैरेक्टर्स है सबके लिए कौन होता बेस्ट? मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 2 बंदे अमर प्रेम के लिए. आई एम प्रेफरिंग रणवीर सिंह और आमिर खान, क्योंकि बंदे कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है रणवीर सिंह बंदे की. और दूसरा सलमान खान का थोड़ा डिसेंट रोल था, मतलब थोड़ा शरीफ टाइप का एक्टिंग करता था. शरीफ नहीं, वो कार्तिक आर्यन बेस्ट है उसके लिए. कार्तिक आर्यन एंड रणवीर. कार्तिक आर्यन. ओके. और ये फिर करीना और रवीना कौन होते? मतलब वो लोग तो मतलब आइडल. करीना रवीना है भाई. देखिए करीना रवीना क्या बोलते हैं, कोई भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं वो अभी करंट I think I would give it to Alia Bhatt for Raveena. Okay. I think she would be a good Raveena. And Kareena for the Pooja Hegde, I think. In my mind. Nice. परेश रावल को परेश रावल ही रहने देते हैं, वो अभी भी वही कर रहे हैं. नहीं परेश रावल को I would say Crime Master Gogo never cheat. I would also say for Amar, I would give it to Vicky Kaushal. Okay. I think he would portray it well. It's because it's more witty, sarcastic. I think after seeing some of his introductions to comedy in a film like Bad News, I think I would give him a chance with that. And then I think for Prem, Ranveer Singh is perfect. Literally, he's dumb, adorable, carefree, and like confident to do whatever needed, like stupidity in front of the camera. For Karishma, I would
I would give Sanya Malhotra. I think she needs more. I think she needs more films like this. I think she's really versatile in that way. On your personal front, do you guys know any haters of this movie, और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है? मेरा मतलब my thing is, अगर जिन लोगों ने ऐसी मूवीज नहीं देखी, मैं बैठ के दिखवाता हूँ कि you should watch this movie. But like, do you have anyone आज जिनको ये देखी है and it feels like okay yeah, why so fuss about it? ऐसा कोई है? अगर है तो what is the एक्चुअली message? है मेरे में बहुत है तो अभी जो है what कॉलेज is the में, message? मेरे कॉलेज में जो है ना, मैं ही हाँ, ऐसे ही अकेला पर्सन हूँ जो देखा है। बाकी लोग ने सिर्फ हेरा फेरी और पी हेरा फेरी देखे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं मूवीज नहीं देखे अच्छा उस टाइम में। अंदाज अपना अपना है, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, उनको कुछ ओल्ड मूवीज का कनेक्शन ही कुछ पसंद नहीं आते। मतलब मैं जब बात करता हूँ ना, वो लोग ज्यादा ही एज के ऊपर, जेंजी के ऊपर ही टॉपिक्स रहते हैं। लाइक अभी सोचो नेटफ्लिक्स का कौन सा शो, यू, स्ट्रेंजर, हे, नेवर हैव आई एवर, वैसे टाइप के उनको कॉमेडीज पसंद है। सो आई तो उनको काइंड ऑफ लाइक, तो उनको मैसेज देना चाहिए ना उनको, किस तरह से आप बताओगे कि ये देखना है, यू शुड मेक देम वॉच इट ना, तो तुमको बताना चाहिए। मैंने जितने भी आज सजेशन दिया ना, आज तक कोई देखा भी नहीं मूवी। बोले हाँ, चलो चलो घर पे, वही उनका काम। दूसरा मूवी यू देखो, For स्ट्रेंजर्स me, हाँ, For me, मैं तो विदेश में रहती हूँ, तो most of the people I interact with have not seen अंदाज़ अपना अपना. But okay. usually it's because it was released before they were born or something like that. Like I don't think I would have watched the movie it was if it wasn't for like my parents being movie buffs हाँ, or something like that. Because I remember we had the Indian Dish TV on our uh, TV here. And I remember just scrolling past what had been recorded, and one of them was Andaz Apna Apna. I'm like, yeah, Andaz Apna Apna. I remember thinking as like a little kid. So my mom was like, ye chala, ye achhi hai. So if it wasn't for that, I don't think I would have watched it. But I also think again because it clashed with such big films after doing research and I think because it wasn't fully PR'd as any other movie is these days, um, it didn't get its like recognition. Usually because again उस time पे like हेरा फेरी के time about पे comedies were on movie, its peak or that's when it just had started. about So the I think it didn't PR, get its chance. पीआर के बारे में अगर बात की जाए तो भाई पीआर सब करवा रहे हैं। जिसकी जो ज्यादा माल प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, उनका पीआर हो। चाहे आप इंस्टेंट बॉलीवुड को ले लो और भी कई है, फिल्मी ज्ञान ले लो आप, भाई खुलेआम पीआर करते, खुलेआम इतना पोस्ट करेंगे, इतना पोस्ट करेंगे, बिग बॉस का टाइम हो चाहे उसका टाइम हो, पीआर करें। और सबसे गंदा पीआर हमारी जॉनरा में करते, मूवी रिव्यू के जॉनरा में। जस्ट लाइक हमारे ऐसे बंदे हैं, बड़े बड़े नाम लूंगा, फिल्मी इंडियन, दीक्षा शर्मा, हर कोई जानता होगा। यूट्यूब पे कभी भी आपको सर्च करना मूवी रिव्यू, वो सबसे टॉप पे आएगी। यस, वो हाँ, but I करेक्ट think टाइम पे as a film जो उनका internal PR marketing था, it करेगी was वो। very different to what it is today. मैंने अब बहुत सारे मूवीज प्रीमियर्स अटेंड किया है, वार्नर ब्रदर्स के बहुत सारे मूवीज प्रीमियर्स के थे। बहुत सा मतलब ऐसे स्टूडियोज के किए थे, लेकिन एक स्टूडियो, पर्टिकुलर स्टूडियो जो नाम लेना चाहता नहीं हूँ, बट बता तो उस टाइम में वो अपना जी टीवी में कौन सा आते थे वो ऐसे न्यूज रिपोर्टर टाइप जो रिव्यूज करते मूवी के टाइम में, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करते। उस टाइम में एक मूवी प्रीमियर के टाइम में उसने इंटरवल जब खत्म हुआ था ना, उस टाइम में वो रिव्यू कर रहा था मूवी, एकदम एक्सपोजिंग करने वाला था उसको, कहीं पे बंदे बताओ, को। वो तो होता ही है। आज भी हार्श रियलिटी है, प्रीमियर्स वगैरह में करना पड़ता है। आप इंटरवल के बाद आप तुरंत मूवी रिव्यू करो, क्योंकि आपको करना ही है। अगर वो आप नहीं बना के डालोगे वीडियो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यस, नहीं ठीक है, आई थिंक और वो अनीशा को भी थोड़ा लेट हो रहा है, तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो मैं एक लास्ट बहुत अच्छा, मतलब नॉट लास्ट अरे बट नहीं, I'm really enjoying this. मैं एक Please, ट्रिविया please. करना चाहता हूँ बिफोर वी ओपन टू ओपन काइंड ऑफ थिंग। आर यू गाइज रेडी फॉर ए ट्रिविया काइंड ऑफ थिंग? ठीक है, ट्रिविया मतलब अंदाज अपना अपना का ही ऑब्वियसली, है ना। तो देखते हैं कि किसने कितनी बार देखी और कितना याद है। तो Yeah. उस कैरेक्टर का नाम बताइए जो बस में पैसेंजर आया था एंड लेटर ही विथड्रू कि अच्छा मैं भी इस रेस में था, मैं इस रेस से वापस ले लिया। क्या नाम था उसका फिल्म में? सबका पैसेंजर।
हाँ, जो वो जो गाने में भी था ना, दो मस्ताने चले दीवाने, फिर वो बोलता है ना कि अच्छा मैं भी इस रेस में था and मैं अब इस रेस अरे मेरे को में। याद है, मेरे को तो वो टोपी याद आ रही है, ब्लू टोपी। आई पैसेंजर नो दैट्स नॉट द क्वेश्चन, ब्लू टोपी जो तरबूज जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया ना, वो याद आ रही है। बस अलग वही समझ गया ना, वो जो बहुत दोनों को तीनों फिर दाढ़ी पहन हम्म के जाते हैं, सबको भगाते हैं, है कि नहीं? हाँ वो हाँ मुकेरी सर, मुकेरी सर। हाँ, नहीं बट उसका नाम क्या था? आनंद अकेला। हाँ नाम अगर उनका रियल नाम मुकेरी सर था। हाँ हाँ, मैं से नाम उसमें पूछ रहा वो हूँ बस कि वाला सीन ना, सीरियस जो एक्टर है, पहली बार मिलते हैं वो लोग ना कॉमेडी बहुत अच्छी उस जब वो करता है। टाइम ऊटी में। जाते हैं। हाँ उठी जाते हैं, वो आनंद हाँ अकेला था ना, मैं आनंद अकेला, मैं अकेला ही रहूंगा, आप दोनों रहो, ठीक है। ओके, हम्म नेक्स्ट। महमूद महमूद सलमान के साथ है ना एक मूवी बनाना चाह रहा था ना, और वो उसका प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या था, वो जो ठीक है। बहुत सा मतलब ऐसे स्टूडियोज के किए थे, लेकिन एक स्टूडियो, पर्टिकुलर स्टूडियो जो नाम नाम लेना चाहता नहीं हूँ, बट बताता हूँ। उस टाइम में वो अपना जी टीवी में कौन सा आते थे वो, ऐसे न्यूज रिपोर्टर टाइप, जो रिव्यूज करते मूवी के टाइम और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करते। उस टाइम में एक मूवी प्रीमियर के टाइम में उसने इंटरवल इंटरवल जब खत्म हुआ था ना, उस टाइम में वो रिव्यू कर रहा था मूवी, एकदम एक्सपोजिंग करने तो वाला था उसको, कहीं पे बंदे बताओ, को। वो तो होता ही है। आज भी हार्श रियलिटी है, प्रीमियर्स वगैरह में करना पड़ता है। आप इंटरवल के बाद आप तुरंत मूवी रिव्यू करो, क्योंकि आपको करना ही है। अगर वो आप नहीं बना के डालोगे वीडियो, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्लियर केस। और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। पहले मूवी रिव्यू वैसे करने भी के मेरे लिए को भी अगेन मुश्किल है। डिबेटिंग हाँ नहीं नहीं, अभी हम लोग बहुत अलग टॉपिक चले जाएंगे। हाँ, यस। नहीं ठीक है, आई थिंक और वो अनीशा को भी थोड़ा लेट हो रहा है, तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो मैं एक लास्ट बहुत अच्छा, मतलब नॉट लास्ट अरे बट नहीं नहीं, आई एम एटलीस्ट रियली एंजॉयिंग दिस। प्लीज प्लीज। मैं एक ट्रिविया करना चाहता हूँ बिफोर वी ओपन टू ओपन काइंड ऑफ थिंग। आर यू गाइज रेडी फॉर ए ट्रिविया काइंड ऑफ थिंग? ठीक है, ट्रिविया मतलब अंदाज अपना अपना का ही ऑब्वियसली, है ना? तो देखते हैं कि किसने कितनी बार देखी और कितना याद है। तो या उस कैरेक्टर का नाम बताइए जो बस में पैसेंजर आया था एंड लेटर ही विथड्रू कि अच्छा मैं भी इस रेस में था, मैं इस रेस से वापस ले लिया। क्या नाम था उसका फिल्म में? पक्का पैसेंजर। हाँ, जो वो जो गाने में भी था ना, दो मस्ताने चले दीवाने, फिर वो बोलता है ना कि अच्छा मैं भी इस रेस में था and मैं अब इस रेस अरे मेरे को में। याद है, मेरे को तो वो टोपी याद आ रही है, ब्लू टोपी। आई पैसेंजर नो दैट्स नॉट द क्वेश्चन, ब्लू टोपी जो तरबूज जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया ना, वो याद आ रही है। बस अलग वही समझ गया ना, वो जो बहुत दोनों को तीनों फिर दाढ़ी हम्म पहन के जाते हैं, सबको भगाते हैं, है कि नहीं? हाँ वो हाँ मुकेरी सर, मुकेरी सर। हाँ, नहीं बट उसका नाम क्या था? आनंद अकेला। हाँ नाम अगर उनका रियल नाम मुकेरी सर था। हाँ हाँ, मैं से नाम उसमें पूछ रहा वो हूँ बस कि वाला सीन ना, सीरियस जो एक्टर है, पहली बार मिलते हैं वो लोग ना कॉमेडी बहुत अच्छी उस जब वो करता है। टाइम ऊटी में। जाते हैं। हाँ उठी जाते हैं, वो आनंद हाँ अकेला था ना, मैं आनंद अकेला, मैं अकेला ही रहूंगा, आप दोनों रहो, ठीक है। ओके, हम्म नेक्स्ट। महमूद महमूद सलमान के साथ है ना एक मूवी बनाना चाह रहा था ना, और उसका प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या था, वो जो प्रोडक्शन हाउस था? थोड़ा डिफिकल्ट है ये, मैं इजी वाले नहीं दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम लोग देखोगे। प्रोडक्शन हाउस हाँ, जो ये देखो सर्च कर रहे हैं ये Gosh, लोग। I wish I would have watched this yesterday or last night before coming on. मैं कुछ तो I was like, I स्टूडियोज know का the नाम movie था, really well. महबूब स्टूडियो। स्टूडियो का नाम था, ऐसा हाँ फोटोशूट हुआ करता था मतलब। और वो जो बंदा था वो सबको चुना लगा था सालों साल, हाँ, स्पेशली। वावा प्रोडक्शंस शुरू कर दो Wawa वाह। Productions. I देखो think मतलब कच्चे खिलाड़ी हो तुम लोग। हाँ यही कह रहे हैं, कच्चे खिलाड़ी हो अभी देखो। अच्छा, बहुत साल हो गए watch को। ये तो इजी रहेगा कि तेजा कौन सा बिजनेस करना चाहता था अपने भाई के पैसे से। ये तो इजी है, ये भी नहीं पता blanking. कि हाँ मैं मतलब अब मैं ये करूंगा वो करूंगा। दीपांकर आप तो म्यूट हो लगता है। हाँ, sorry. Something came out. So this is very easy. Okay, दिस like इज this वेरी is should इजी, be a ये तो top of बहुत my mind. इजी And It's है। very easy. I am someone who I'm has तेजा forgetting, I'm seen. blanking. I am someone who has तेजा seen के Anna कैरेक्टर Sapna क्या है? maybe 2 or 3 times only. So, but still I remember. जेल में होता है ये सीन
कि हाँ मैंने तुम्हें हीरा देने का फैसला कर लिया है, ठीक है। बहुत सारे थे डायलॉग्स। रुको बताओ दीपांकर, आप ही बता बिजनेस दो। का ना, हाँ हाँ आप ही बता दो दीपांकर, आपको पता है ना। मुर्गी वाला बिजनेस था उसका। पोल्ट्री का बिजनेस करूंगा, उससे इतने अंडे 100 Oh मुर्गी my इतने देंगे, God. 100 अंडे से फिर मुर्गियां होंगे। How could I forget? Oh. Like that was one cult one, na? Which was there. And I haven't seen much under अपना like I think Jamal would have seen a lot of times. मैंने मैं सिर्फ तो 2-3 बार देखा होगा। मैंने कॉन्ट But नहीं किया है, दैट इज टोटली फाइन। हाँ मैंने तो अभी सिर्फ जस्ट रीवॉच किया, बट ऐसा डिटेल्स नोटिस करना किया ही नहीं। मतलब देखो पुराना मूवी है, बट अभी रीवॉच करो मैं। Yeah, I Yeah, think I I would need to, for trivia, I would need to watch the movie, I think at least yesterday or something like that, and then come back on this. और ये लास्ट रवीना करिश्मा को मैप करो, कौन रवीना थी, रवीना टंडन कौन थी और करिश्मा कपूर कौन थी। ये भी बहुत करिश्मा इजी है। Raveena Tandon was a heiress, na? Really rich नहीं heiress. नाम रवीना टंडन का कैरेक्टर नेम क्या था? करिश्मा थी, करिश्मा रवीना थी। हाँ, Raveena Karishma. रिवर्स। रवीना करिश्मा थी और करिश्मा हाँ. रवीना थी। No. Yeah, Raveena was Raveena and Karishma was Karishma. नहीं शकील सही कह रहा है, रवीना करिश्मा थी, करिश्मा रवीना थी, बिकॉज रिवर्स। इनिशियली वो लोग नाम अलग रख रहे थे ना। Oh, I thought you went from the start of the film. No. नहीं वही तो हाँ, गूगली ठीक है है. भाई, गूगली है ना। ओके तो मैं तो अब नहीं पूछूंगा, तुम लोग को रिवीजन चाहिए, यू गाइस नीड अ सॉलिड रिवीजन। मेरे क्वेश्चंस चलो यार वॉच पार्टी करते हैं। इंडिया में री रिलीज हो रही कोई है, आज मूवी पे लगाओ। थिएटर में लगा, बट इट इज गुड एक्चुअली। I ठीक है, actually आई like थिंक that it's being re-released because it's a जो ये नई generation है, they will see इवन मतलब what the movie was for हम लोग us. ने भी, मैं भी बहुत पुराने जनरेशन का, बट वी हैवंट वॉच इन थिएटर, तो इट वुड बी रियली गुड वॉचिंग इन It थिएटर। really ages the generational gap, honestly, because you don't need much knowledge of the political landscape or anything like that to understand it. And from any age, you can comprehend it well. It's just kind of it depends ki, like what age you're watching it at, what will you comprehend. Again, if you're a bacha, you'll be like, okay, kya ho raha hai? I think But then when you're if older, you're a you'll be like, बच्चा, you will whoa, ye still crime master go. And I think Alex, they might make fun of it also, but it's very good to hear from Anisha or even Himanshu or Shakil, like you guys still like, because there's a huge gen gap. So if it is bridging the generation, I think it is still that makes it a cult movie, right? It's if it is bridging the generation. If You it know is it's a only cult movie when there's memes on it. memes on it, when it's still running, when people are still talking about it, so it's a cult movie. It is crossing generation, as simple as it is, right? Yes. So that's the high point of it. Cool. Any other thing, any other memories you want to talk about it, or any specific thing? मतलब इतना ही था, I मतलब it's do totally. think that it being re-released is great. We are obviously showing it in cinemas and they'll get its recognition. But a lot of old or classic movies are being re-released, and I feel like basically companies are just profiting off the nostalgia and the fan base to make money. I think that that's a big thing that's happening, and I अब ये understand how having सीन पे कुछ a बात, shared like nostalgia. मैं सीन पे बात करना चाहूंगा। बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं अभी करंट टाइम लाइन, मतलब हर फिल्म को आवारापन 2 है और ऐसे आवारापन जैसी मूवी और भी रिलीज कर रहे हैं। पर जो सनम तेरी कसम मूवी ने जो काम कर दिया जिस टाइम पे रिलीज करके, तुम्बाड़ थी हमारे शुभम साकी, उसने एक अलग सिनेरियो क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इनको लगता है हर इंसान रिलीज करके फिल्म पैसे छाप लेगा, तो ऐसा नहीं है। नई फिल्में भी आ रही, वही पिट रही है, ये बहुत I बड़ा think रीजन in है। general, cinemas are being they're almost being extinct at this point. They're in critical danger. अब किसी से भी बात करती हूँ, I'm like ये movie release हुई है, इसके मैंने review किया, I really liked it. And they'll be like, अच्छा तो कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे? I'm like नहीं, अभी cinemas में है, तो सिनेमा में जाके देख लो. They're like यार सिनेमा में क्या Wait कर लेते हैं। देखूंगी yeah, I यार, think मैं the OTT तक COVID, वेट करूंगी, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है? I think I'm like, COVID changed the behavior.
And I plus, really plus the love thing is, going into a cinema in full. I sometimes when I'm in the cinema itself, I'm looking ki what are people thinking of this? Like what is their reaction नहीं तो as a अभी वो आ गया general कि public? unless you get the confirmation है कि बहुत ही अच्छी है सिनेमा के लायक है, then only you will go. अभी वो Yeah. एक बहुत strong filter आ चुका है कि अच्छा it is something जो होगा I तभी. really wish for people to go back into the cinemas. And again, I really agree with what you were saying. Let's hope अंदाज अपना is touted to be one of the biggest re-release. Okay, तो ये तुम्बर को भी क्रॉस करने का है, मतलब इसका है एस्टिमेट, सनम तेरी कसम को भी, because obviously this is like crossing generation और more like people like they want to watch it in group. ठीक है, वो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ देखना चाहते हैं, जो काम वो घर पे कर चुके हैं, they want to do it in theaters. तो it's a very good kind of thing at least. And it's a good thing if it brings back people to theater. तो theater के लिए भी अच्छा है. It is something that is good. Let's hope that people create new memories और जो नई generation है वो I'm देखे really जाए. excited as well ki how the film lands after, like, you know, this for this new generation. How will this humor land? How will they recontextualize it, and how will they see that differently? I'm really excited to see that and hear it from the audience. Sure. और तो अभी तो सीन ऐसा सब जेंजी कहते हैं, वो सारे एनीम देखते हैं, ऑन पॉइंट बोलना, सब एनीम देखते हैं, शायद वो लोग इससे कोरिलेट हम जेंजी इतने भी बुरे नहीं है. एनीम भाई ऐसे जेंजी मैं भी हूँ, मैं भी 20-22 साल का बंदा हूँ, फिर भी मैं इतना एनीम का, मुझे एनीम पसंद नहीं, एनीम मैं देखता नहीं, मैं भाई बॉलीवुड more than anime Shakil, it's more about short attention. ठीक है, it's more about Short that attention, but also our comedy has changed over the time, Our right? comedy has changed, actually. What was okay at that time to joke about has sometimes not been okay now. So I'm really excited to see with this new generation and changing mindsets how it lands, because it's very situational and slapstick and over the top. So I'm excited to see how that lands. cool. नहीं देखते हैं, and I think we would I don't know कि अंदाजा अपना कि कितने रिव्यूज है अपने ऐप पे, but at least after during this couple of weeks I'll ensure कि हमारे critics के से रिव्यूज आए, and we ensure कि ये बाहर वाले लोगों को ये पता Especially चले the कि new हाँ generation लोग. हाँ न्यू Especially the new जनरेशन generation. पोस्ट करो, दैट इज समथिंग वो मैं पुश करूंगा, बट वी विल हैव समथिंग वेरी स्पेसिफिक रनिंग फॉर कपल ऑफ वीक्स टिल इट्स री रिलीज, बिकॉज वी आवरसेल्फ वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट. तो कीप देखते रहना, इंस्टा चैनल ऐप देखते रहना, एंड होपफुली विल हैव समथिंग एंड प्रीटी गुड डिस्कशन हियर. थैंक्स फॉर अटेंडिंग, थैंक्स अ लॉट. आप बताओ एनीथिंग एल्स? It is releasing मेरा near my एक birthday, final so it's my thoughts है. birthday gift. Oh, it's really concept. That's nice.